Good morning students, I welcome you all to the online classes of SGOI. So we were doing exercise 23A and we have discussed up to the question 10. Okay. Now we will be starting with question number 11. Question number 11 is saying that a square and a rectangle have equal areas. If the sides of the square are 18 cm and the width of the rectangle is 12 cm, find the length of the rectangle. The question is very easy. Question 11 में आपको बोला जा रहा है एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल, ठीक है। दोनों का एरिया क्या है? सेम है। साइड ऑफ द स्क्वायर इज गिवन, साइड ऑफ द स्क्वायर हैज ऑलरेडी बीन गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर्स। So we can easily find out the area of the square. Area of square, you all know the formula, that is side multiplied by side. Okay, that will be 18 multiplied by 18. Okay, 8 is a 64 6, 8 plus 6 14, 8 and 1 4, 8 plus 4 2 and 1, 2 plus 1 3. 324 is the square of 18, ठीक है। 18 का स्क्वायर 324, तो इसका एरिया कितना होगा? 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now the question is saying that the area of the square and the area of rectangle are same, ठीक है। तो आप लिखोगे area of rectangle, that is L multiplied by B। रेक्टेंगल का एरिया और स्क्वायर का एरिया सेम है, दैट मींस यहां 324 है तो इसका एरिया भी 324 ही होगा, इज इक्वल टू नाउ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन, दैट इज 12, लेंथ फाइंड करनी है, L multiplied by 12, so value of L will be equal to 324 upon 12, that is 12 is 24, 8 and 24, 12 7 and 84. So L will be equal to 27 centimeters. So from here we can say that the length of the rectangle will be equal to 27 centimeters. Now moving to question number 12. Question number 12 is saying a rectangular hall is 16 meter long, 12 meter wide. How many marble slabs of size 25 centimeter into 15 centimeter are needed to cover the hall? ठीक है, इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द हॉल, area of the floor of hall, मार्बल कहाँ लगेगा? फ्लोर पे ही लगेगा, ठीक है। that will be equal to length multiplied by breadth. So length is given, that is 16 meter, तो उसको सेंटीमीटर चेंज कर लेंगे तो 1600 हो जाएगा, multiply by breadth is given, that is 12 मीटर, 12 को सेंटीमीटर चेंज कर लेंगे तो 1200 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। So this will be what? इसको ऐसे लिखा रहते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ मार्बल का एक स्लैब जो है उसका आपको डायमेंशन दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी फाइंडिंग द एरिया ऑफ द वन स्लैब ऑफ मार्बल, एरिया ऑफ वन स्लैब ऑफ मार्बल, दैट विल बी इक्वल टू 25 multiplied by 15, 25 multiplied by 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया है एक स्लैब ऑफ मार्बल का, ये एरिया है पूरे रूम का। नाउ दे आर सेइंग यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जो लगेंगे, तो कितने मार्बल्स लगेंगे वो कह रहे हैं, इसके एरिया को डिवाइड करेंगे इसके एरिया से, तो नंबर ऑफ मार्बल्स will be equal to 1600 multiplied by 1200 upon 25 multiplied by 15. 15 मतलब 15, 15 8 120 and 0 80 होगा, ठीक है। Now 25 मतलब 25
this will be what? This will be 30 64, ठीक है, डिवाइड करेंगे 64 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। Now 64 multiplied by 8 will be getting 8 1 32 carrying 3, 8 6 are 48, 48 plus 3 51 and 0. So आपको 5120 मार्बल्स लगेंगे in order to cover the flooring of the hall, ठीक है। Now moving to question number 13. Now question number 13 जो है बिल्कुल सेम है 12 की तरह। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड करना होगा रूम का एरिया, उसके बाद आपको फाइंड करना होगा length of the carpet and then the total cost। चलिए बता ही देता हूँ, there is slight difference there। Question number 13. Question 13 is saying that a room is 13 meter long and 9 meter broad. Find the cost of carpeting the room with a carpet of 75 centimeter broad at rupees 50 per meter square। जैसे ही आपने रेट देखा कि रेट दिया है पर मीटर, therefore आपको हर एक चीज को मीटर में ही रखना पड़ेगा। कार्पेटिंग करनी है रूम में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस रूम का फ्लोर का एरिया फाइंड करना पड़ेगा आपको। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ फ्लोर, ठीक है। एरिया ऑफ फ्लोर कितना होगा? दैट इज वेरी नॉर्मल, L into B। लेंथ ऑफ द फ्लोर इज गिवन, दैट इज इक्वल टू 13 मीटर एंड द ब्रेड्थ इज गिवन, दैट इज 9 मीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट 13 9 का 117 मीटर स्क्वायर एंड दैट इज द एरिया ऑफ द फ्लोर। फ्लोर का एरिया जो है दैट इज 117 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ कारपेट का आपको विड्थ दिया हुआ है लेकिन लेंथ नहीं दिया। अब आप खुद सोचो, अगर इस पूरे फ्लोर में आपको कारपेटिंग करनी है तो जितना इसका एरिया है उतना ही कारपेट का भी एरिया होना चाहिए, ठीक है। तो कारपेट का एरिया शुड बी इक्वल टू द फ्लोर का एरिया, ठीक है। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ कारपेट शुड बी इक्वल टू area of the floor। Why? Because carpet फ्लोर पे बिछेगी ना, तो दोनों का एरिया कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब कारपेट का आपको लेंथ नहीं दिया है तो उसको L ही मानेंगे। ब्रेड्थ आपको दी हुई दैट इज 75 सेंटीमीटर्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 75 सेंटीमीटर को आप चेंज करेंगे मीटर्स में, तो हो जाएगा 0.75 मीटर्स, ओके। नाउ एरिया ऑफ फ्लोर हैज ऑलरेडी बीन फाउंड आउट, दैट इज 117 मीटर स्क्वायर। So from here we can easily calculate the length of the carpet. So L will be equal to 117 upon 0.75, decimal remove करेंगे, डबल जीरो कैरी करेंगे ऊपर, ठीक है। Now we can clearly see कि ये नंबर है 25 से एलिमिनेट हो सकता है, या फर्स्ट ऑफ ऑल 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो 25 टाइम्स में आएगा, ऊपर 3 से डिवाइड करेंगे तो we'll get 3 is 9 and 3 is 27 double zero, okay। Now 25 से डिवाइड करते हैं, we will get 25 another 25 and this will be 25 another 25, कितना बचा? 14, that will be 140। so 25 5 plus 125, 15 बचेगा, 15 and 0 is 150। we know that 25 is the 150। so length जो आ रही है कारपेट की that is equal to 156 meters। so length of the carpet is 156 meters। नाउ कॉस्ट फाइंड करनी है तो क्या करेंगे? लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे रेट से। रेट इज दैट इज 50 पर मीटर। तो दिस गिव्स अस 76 रुपीज 7600 विल बी द टोटल कॉस्ट जो आपको लगेगी इन ऑर्डर टू कारपेट द फ्लोर ऑफ दैट रूम, ठीक है। $7,800। Now let's move for the
मल्टीप्लाई करने से 800 ही आएगा, ठीक है। गोइंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 14। Now question 14 is very easy। आपको क्या करना है, पहले निकालना है शीट का एरिया, उसका एक एनवेलप में कितना एरिया लग रहा है वो कैलकुलेट करना है, शीट के एरिया में से एनवेलप के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15। Question 15 is saying that the total cost of cultivating a rectangular field at rupees 15 per meter square is rupees 18,330. If the breadth of the field is 26 meter, find the cost of fencing the field at rupees 20 per meter. Question is very nice. So you should be focusing on the board in order to understand the solution of this question. So सबसे पहले आपको बोला जा रहा है कि एक फील्ड है, ठीक है, उसको कल्टीवेट किया गया एट रेट 15 पर मीटर स्क्वायर, मतलब रेट फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया है रुपीस 15 पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया को कल्टीवेट करने के लिए पैसा लग रहा है 15 रुपए, ठीक है। तो अब आपको बोला गया टोटल पैसा, टोटल मनी इज गिवन 18,330, टोटल मनी 18,330 रुपीस, ठीक है। तो आप खुद सोचो, अगर 1 मीटर स्क्वायर में पैसा लग रहा है रुपीस 50 और टोटल पैसा गिवन है, तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो कल्टीवेशन का। तो यू कैन राइट एरिया ऑफ कल्टीवेशन, कितना एरिया कल्टीवेट हुआ है, टोटल पैसा दैट इज 18,330 अपॉन 1 मीटर में लगा पैसा दैट इज अपॉन 15। You can easily divide this by 15. This will give us 15 1 the 15, carry 3 and 3 33, 15 2 the 30, 3 and 3 33, 15 2 the 30 and again 15 2 the 30. So we can clearly get कि जो एरिया है वो है आपका 1,222 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया आपने फाइंड किया दैट इज 1,222 मीटर स्क्वायर। आगे आपको फील्ड का ब्रेड्थ दिया हुआ है, तो यू कैन राइट एरिया इज इक्वल टू L into B। एरिया पहले फाइंड कर चुके हो 1,222, लेंथ इनटू ब्रेड्थ आपको गिवन है दैट इज इक्वल टू 26 मीटर। L आप क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हो 1,222 अपॉन 26 से, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 13 द दिस विल बी 2 6 द 12 1 and 1। Now let's see divide this with 13, we'll get 13 1 the 13, this will be 13 4 the 52, okay, remainder will be 9 91, we know that 13 7 the 91, okay। so length जो आ गया that is equal to 47 meters, ठीक है। तो प्लॉट का लेंथ आ गया 47 meters। आगे आपको बोला जा रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग का मतलब होता है पेरीमीटर। जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी तभी मैंने बोला था आपको, जब भी वर्ड आपको फेंसिंग दिखेगा तो यू विल बी नोटिसिंग कि आपको पेरीमीटर भी कैलकुलेट करना है। ब्रेड्थ आपको पहले से ही पता है दैट इज 26, लेंथ आपने कैलकुलेट कर ली दैट इज 47, तो अब आप पेरीमीटर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 2 times L plus B। length is 47 plus breadth is 26. When you add this with 2 into 73, that will give us 146 meter। इसका जो पेरीमीटर आ गया that is 146 meter। अब आपको कॉस्ट फाइंड करनी है, पेरीमीटर को कॉस्ट मल्टीप्लाई करने हैं। कॉस्ट will be equal to 146 multiplied by 70। This will be the equation carry 1, 4 to the 8 plus 9 and 2 1 the 2 and 0। Answer will be rupees 2,920 and that is the solution of your question number 15, okay। Now let's move to the diagrammatic questions। They are starting from question number 16।
So there are various diagrams given. Question number 16 का part 1, part 2 और part 3. They are quite similar to each other. तो मैं first of all क्या करूँगा, आपको part number 3 explain करने की कोशिश करता हूँ. Question number 16, part 3. Part 1 और 2 आप अपने आप से try करेंगे. The diagram is something like this. They are saying कि इसका जो लेंथ है ये 14 मीटर्स है, दिस इज 14 मीटर्स. इसका जो कंप्लीट लेंथ गिवन है दैट इज इक्वल टू 12 मीटर्स. ओके, दिस वन इज 2 मीटर, ये जो है आपका दिस इज 2 मीटर. ओके, दिस इज 10.5. यहां से लेकर के यहां तक की जो लेंथ है आपकी दिस इज 10.5 मीटर. ठीक है, नाउ दे आर सेइंग कि आपको फाइंड करना है दिस एरिया ऑफ शेडेड रीजन. इसका एरिया आपको पूरा फाइंड करना है, दिस एरिया. ठीक है, इजी क्वेश्चन है. आप क्या करो, इसको यहां से ऐसे डॉटेड से ज्वाइन करोगे तो एक ये रेक्टेंगल दिखेगा और एक ये रेक्टेंगल दिखेगा. ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूं पार्ट 1 और इस वाले पूरे पार्ट को बोल रहा हूं पार्ट नंबर 2. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे एरिया ऑफ पार्ट 1. इसका लेंथ फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए होगा आपको और आपको चाहिए होगा इसका विड्थ. तो लेंथ तो पहले से दी हुई है 14 मीटर्स, तो लेंथ विल बी 14 मीटर्स. अब बात आती है विड्थ की, मतलब ये लेंथ. तो आप क्लियरली देख पा रहे हो ये पूरी 12 है, दिस वन इज 10.5. तो ये बचा हुआ कितना होगा, 12 - 10.5 दैट इज 1.5. ठीक है, और 14 को आप मल्टीप्लाई 1.5 से करेंगे तो यू विल गेट 21 मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी 21 मीटर स्क्वायर. ठीक है, अब मूव करते हैं इस रेक्टेंगल के बारे में. लिखेंगे एरिया ऑफ पार्ट 2. अब इतना फिगर बचा है, इतना वाला. लेंथ कितनी इसकी गिवन है 10.5 और विड्थ भी है आपको 2. इजी, L into B, L is 10.5 and breadth is 2. Multiply करेंगे we'll get 21 मीटर स्क्वायर. इसका भी 21 आया, इसका भी 21 आया. एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर that is equal to 21 plus 21 that is 42 meter square will be the answer of this question. ठीक है, now बाकी दो पार्ट और बचे हुए हैं. So I will be discussing them in our next class and then I will be starting with a new chapter that is data handling. Thank you.